Assalamu alaikum all of you. My presentation topic is a yeast. This is content of yeast. First, the introduction, characteristics, scientific classification, structure of yeast, and nutrition and growth of yeast, reproduction and their types, and last one, the economic importance of the yeast. First, the introduction. Yeast are single-cell microorganisms that are classified along the molds and mushrooms. It means yeast जो है ना वो सिंगल सेल है. इट कंटेन सिंगल सेल और क्लासीफाई किया गया है मशरूम एंड मोल्ड्स में. एज अ मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई, yeast are evolutionary diverse and therefore classified into the separate fiber. yeast जो है ना वो डाइवर्स ग्रुप है, वो सेपरेट फाइला में ग्रुप किया गया है. एस्कोमाइकोटा जिसको हम लोग सेक फंजाई कहते हैं और बेसिडोमाइकोटा जिसको हम लोग हायर फंजाई कहते हैं. दैट टुगेदर फॉर्म अ सब किंगडम डाइक्रेटा. बडिंग ईस्ट आर आल्सो नोन एज अ ट्रू ईस्ट. जो ट्रू ईस्ट है वो क्या है, बडिंग ईस्ट को हम लोग ट्रू ईस्ट कहते हैं. एज अ मेंबर ऑफ फाइलम एस्कोमाइकोटा एंड ऑर्डर सैक्रोमाइसीटा, सच क्लासिफिकेशन are based on characteristics of cell, ascospores and colony as well as a cellular physiology. Although these are single cell organism, they possess a cellular organization similar to that higher organism. Means जो इस में होता है ना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेम होती है जैसे हायर ऑर्गेनिज्म में होती है, लाइक एनिमल्स में, like humans or animals में. Especially the genetic content is contained within a nucleus. It means the genetic material is also present in the nucleus. This classify them as a eukaryotic organism. जो ये क्लासिफिकेशन है मीन्स जेनेटिक मटेरियल होता है ना वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग उसको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं. अनलाइक दे सिंगल सेल काउंटर पार्ट्स बैक्टीरिया विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस आर कंसिडर्ड एज अ prokaryotics. And the second is the characteristics of yeast. First, the character is that the yeast are a unicellular organism. yeast जो है वो क्या है, unicellular organism है that evolved from multicellular ancestor. जो yeast evolve हुई है वो multicellular ancestor से हुई है. With some species have ability to develop multicellular characters by forming a string of connect budding सेल नैन एज सीडो हाइफी और फाल्स. जो कुछ स्पीशी होती हैं उसमें क्या होता है कि एबिलिटी होती है वो मल्टी सेलुलर कैरेक्टर्स डेवलप करती हैं. मल्टी सेलुलर कैरेक्टर वो कौन सा होता है, जैसे सीडो हाइफी जिसको हम फाल्स हाइफी कहते हैं, वो क्या होते हैं कनेक्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ कनेक्टिंग होती है बर्डिंग में. द सेकेंड कैरेक्टर इज दैट द ही साइज वेरी ग्रेटली डिपेंड ऑन साइज इन्वायरमेंट measuring 3 to micrometer in diameter. Although some species have grown to 40 micrometer in size. मीन्स जो इसकी वो साइज़ है वो डिपेंड करती है इन्वायरमेंट एंड स्पीशीज में. जो मेजरिंग जर्नली होती है वो क्या होती है 3 to 4 माइक्रोमीटर डायामीटर होती है और 40 माइक्रोमीटर इन साइज़ होती है. हीज रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस asexually by mitosis and may do so by asymmetrical deviant process known as budding. It means the yeast are reproduced by the sexual as well as asexual. asexual वो होगी ना बर्डिंग के थ्रू प्रोसेस के थ्रू होगी. The yeast convert the carbon dioxide to the carbohydrate to the carbon dioxide and alcohol and the process known as a fermentation. जो yeast में होता है ना वो fermentation process होता है. fermentation process क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना वो कन्वर्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और अल्कोहल में. yeast is a most important model organism in modern cell biology research. It means that yeast are important in the point of view of research. means इस पे काफ़ी रिसर्च वर्क हो सकता है yeast पे और हो रहा है. yeast vary in color from dark brown to the almost white. yeast का जो कलर होता है वो क्या होता है डार्क ब्राउन टू दी almost वाइट होता है. yeast have recently been generate electricity in microbial fuel cells and it also produce ethanol from biofuel industry. yeast का जो इम्पोर्टेंट है वो जनरेट मतलब यूज़ हो रहा है जो प्रोड्यूस दी इलेक्ट्रिसिटी इन माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स में एंड माइक्रोबियल फ्यूल इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है टू प्रोड्यूस दी इथेनॉल.
Some species of yeast, such as Candida albicans or opportunistic pathogen, can cause infection in human. मतलब जो yeast होती है वो क्या है, पैथोजन है, वो क्या करती है, डिजीज़ काज करती है उन ह्यूमंस में. And last character is that the yeast is an egg cell single cell fungus that only visible. It has microorganisms that are only visible under the microscope. और जो yeast का वो सेल है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो क्या है, एग शेप्ड है, सिंगल सेल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. एंड साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ द yeast. डोमेन क्या है, यूकेरिया, किंगडम फंजाई, डिवीजन ऑफ फाइलम एस्कोमाइकोटा, क्लास सैक्रोमाइसीड, ऑर्डर सैक्रोमाइसीटलस, फैमिली सैक्रोमाइसीटिस, जेनस सैक्रोमाइसीड्स, स्पीशी सर्वेसिया, साइंटिफिक नेम में सैक्रोमाइसीटल सर्वेसिया. एंड देन द स्ट्रक्चर ऑफ द yeast. Structure of yeast is that the structure of yeast cell has been very thoroughly worked out by large number of inventors different in their inter मीन्स yeast पे जो सेल पे है वो काफ़ी साइंटिस्ट ने रिसर्च वगैरह की है और डिफरेंट स्ट्रक्चर उन्होंने बताई. yeast generally each yeast cell have distinct cell wall enclosed by granules cytoplasm. जो आउटर साइड होती है वो yeast के सेल में वो उसको सेल वॉल प्रेजेंट होती है और इनसाइड द सेल वॉल द साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट विदिन द व्हिच कैन बी लार्ज वैक्यूल. और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, लार्ज वैक्यूल और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. द वैक्यूल वेरी मच इन साइज अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ एक्टिविटी. जो वैक्यूल की जो साइज़ होगी ना वो वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ एक्टिविटी ऑफ द सेल्स. It may time become much contract, but it does not disappear completely except during spore formation. तो ये क्या होता है कि वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, बस कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं होता एक्सेप्ट ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन में ये क्या होगा, डिसअपियर होगा. जो सेल वॉल है वो क्या होती है थिन डेलिकेट होती है एंड इट कंपोज ऑफ काइटिन इन कॉम्बिनेशन विथ अदर कंपाउंड्स. जो रिजर्व मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूलस, ग्लाइकोजन एंड वोलेटिन. जो रिजर्व मटेरियल है वो किस में प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा और इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ग्लोब्यूलस की सूरत में होगा. दिस सेल वॉल कंटेन प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड टू पॉलीसेक्राइड, मैनिन एंड ग्लाइकोजन. जो सेल वॉल में होती है वो क्या होती है, काइटिन भी प्रेजेंट होती है पर सम टाइम लिपिड, प्रोटीन्स एंड मैनिन एंड ग्लाइकोजन की टू पॉलीसेक्राइड लेयर भी प्रेजेंट होती है. काइटिन इज आल्सो प्रेजेंट इमीडिएटली बिलो द सेल वॉल. द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. साइटोप्लाज्म के जो सेल वॉल के नीचे होगी वो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. वो क्या होती है, उस द मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ पार्टिकल्स पेनिट्रेट बाय फाइबर्स विच प्रॉपरली क्रॉसबोर्डिंग टू ग्लाइकोजन फाइबर टू द सेल वॉल. ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें क्या होते हैं कि फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं विद इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि वैक्यूल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, द रिजर्व ऑफ फैट्स एंड ग्लाइकोजन आर आल्सो प्रेजेंट. द लार्ज वैक्यूल surrounded by single membrane contain strand granules and dense material sometimes linked into the network. जो वैक्यूल होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, उसमें क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और डेंस मटेरियल जो नेटवर्क की सूरत में प्रेजेंट होता है. द लार्ज ग्रेन्यूल्स आर प्रॉपरली वोलेटिन. जो ग्रेन्यूल्स जो लार्ज होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, वोलेटिन होते हैं. न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय डबल यूनिट मेम्ब्रेन जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है और वो उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको कहते हैं. और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है कि पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्टिंक्ट फ्रॉम वैक्यूलर मेम्ब्रेन विच इज सराउंडेड बाय द वैक्यूल्स. इट मीन्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होगी उससे क्या होगी, डिफरेंट होगी. This is a structure of the yeast. First, in the mitochondria, this is a bud. Outgrowth is produced from parent body. Bud उसमें क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगी, पहले ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. बड में
और उसके बाद ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पोर्स है न्यूक्लियस में, और वैक्यूल प्रेजेंट है, वैक्यूल के अराउंड जो है वैक्यूलर मेम्ब्रेन है, और बड स्केयर है, आउटसाइड द सेल वॉल इज़ प्रेजेंट, एंड स्टोरेज ग्रेन्यूल्स जो ऑयल्स है वगैरह वो प्रेजेंट हैं। एंड द न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ ऑफ द हीस आर कोनोट्रोफिज्म, मीन्स इट इज़ अ heterotrophic. They cannot prepare their own food material like a plant. They use organic food. Organic compound is a source of energy. Do not require sunlight to grow. Means इसमें क्या है कि इसको सनलाइट नहीं चाहिए ग्रो करने की, बिकॉज दे yeast is not a autotroph. They are heterotroph. Carbon is obtained mostly from hexose sugars such as glucose and fructose. जो कार्बन है वो किसे हेक्सोज की सूरत में यूटिलाइज करते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज है, और डाइसेक्राइड है, सक्रोज और माल्टोज. सम स्पीशी कैन मेटाबोलाइज पेंटोज शुगर सच एज राइबोज, अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड्स. जो कुछ स्पीशीज़ हैं वो क्या है यूटिलाइज करती हैं पेंटोज शुगर को, सच एज राइबोज, अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड. These species either require oxygen for aerobic cellular respiration, obligate aerobic or anaerobic, but have aerobic method of energy production, facultative anaerobes like bacteria. इसमें क्या होता है, जब हीस स्पीशी हो उसको क्या करना है, रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन समटाइम रिक्वायर्ड है, समटाइम नहीं रिक्वायर होती है. जो सम रिक्वायर होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स कहते हैं, और जो नहीं रिक्वायर होती है उसको फैकल्टेटिव कहते हैं हम लोग. Unlike bacteria, not yeast species grow on anaerobically, obligate anaerobe. बैक्टीरिया पे क्या होगा, लाइक बैक्टीरिया हीस जो है ना वो इनओरोबिकली ऑब्लिगेट एनारोब्स पे ग्रो नहीं करेगी. मोस्टली द हीस आर ग्रो इन न्यूट्रल सैलिनिटी एसिडिक पीएच इन्वायरमेंट. जो इसकी बेटर जो ग्रोथ होती है वो किस पे होती है, वो होती है न्यूट्रल एंड जो इन्वायरमेंट होगा या एसिडिक पीएच पे वो ये ग्रो करेगी. ही इज़ वेरी इन रिगार्डिंग टू टेम्परेचर रेंज इन बेस्ट ग्रो बेस. फॉर एग्जाम्पल इसका जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीशी है. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है लिकोस्पोडियम फेरेडियम जो होती है वो ग्रो होती है -2 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है 28 to 68 फ़ारेनहाइट. दूसरी स्पीशी है वो 5 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड. कैनेडिया एस्ट्रोफिलियस वो होती है 28 to 45 डिग्री. दिस सेल सर्वाइव फ्रीजिंग अंडर सर्टेन कंडीशन विच अवेलेबिलिटी डिक्रीज ओवर टाइम. जो सम टाइम जो हीस होती है ना वो फ्रीजिंग कंडीशन में भी क्या करती है, सर्वाइव करती है. इन जनरल हीस ग्रो इन लेबोरेटरी और सॉलिड ग्रोथ मीडिया लिक्विड ग्रोथ. जो लेबोरेटरी में जो इसकी ग्रोथ होती है ना वो किस पे होती है, ग्रोथ मीडिया पे ग्रो करवाते हैं हम लोग लेबोरेटरी में, और लिक्विड ग्रोथ पे. कॉमन मीडिया यूज़ फॉर कल्टीवेशन ऑफ ईस्ट इंक्लूड पोटैटो डेक्सट्रोज, अगर जिसको हम लोग पोटैटो डेक्सट्रो ग्रोथ भी करते हैं. जो कॉमन मीडिया कल्टीवेशन के लिए लेबोरेटरी में यूज़ होता है वो क्या है, वो पोटैटो डेक्सट्रोज अगर यूज़ होता है, और जिसको हम लोग पोटैटो डेक्सट्रोज ग्रोथ भी कहते हैं. वॉल्टर स्टेन लेबोरेटरीज न्यूट्रेंट अगर, हीस पेप्टोइन डेक्सट्रोज अगर, एंड हीस मोल्ड अगर आर ब्रोथ, ये भी यूज़ होते हैं. होम बेवरेजेस हु कल्टिवेट हीस फ्रीक्वेंटली इन ड्राई माल्ट एक्सट्रैक्ट एंड अगर एज अ सॉलिड ग्रोथ मीडियम. जो जनरली होम बेवरेजेस में होता है घीस को कल्टिवेट करते हैं माल्ट एक्सट्रैक्ट पे, एंड अगर एज ए सॉलिड. द फंजीसाइड साइक्लोहेक्सोमाइन इज समटाइम एडेड टू यीस्ट ग्रोथ मीडिया टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ साइक्रोमाइसिड हीट्स. जो एक फंगीसाइड यूज़ होता है समटाइम हीस्ट की ग्रोथ को क्या करने के लिए, इनहेबिट करने के लिए, एंड सेलेक्ट फॉर अ स्पेशल स्पीशीज़. दिस विल चेंज द हीस्ट प्रोसेस. जो हीस्ट का प्रोसेस होता है ये क्या करता है, चेंज करता है. एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द हीस्ट आर रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल में. जो हीस्ट होता है वो रिप्रोड्यूस करता है 3 प्रोसेस के थ्रू, एक वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है उसके क्या होते हैं, 2 प्रोसेस होते हैं, 2 होते हैं, बडिंग एंड फ्यूशन. बडिंग एंड फ्यूशन होते हैं. फर्स्ट द बडिंग, दिस इज़ अ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द यीस्ट. जो ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है यीस्ट में
इन दिस प्रोसेस द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज कवर्ड बाय, इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म जो लिविंग मटेरियल होता है वो थिन वॉल से कवर होता है, वो क्या होता है, पुश्ड आउट ऑफ द सेल वॉल इन द फॉर्म ऑफ बड एंड फॉर्म ऑफ डॉटर सेल, वो मटेरियल क्या होता है, वो पुश होता है आउटसाइड द सेल वॉल एंड फॉर्म करता है बड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग एंड फॉर्म करता है बड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम डॉटर सेल भी कहते हैं. बड enlarge and receive the mitochondria which migrate from parents mother cell much before the nucleus. ये क्या करेगा, ये बड क्या होगी, enlarge होगी एंड रिसीव होगी माइट्रोकॉन्ड्रिया. उसके बाद क्या होगा, बड enlarge होगी और माइट्रोकॉन्ड्रिया माइग्रेट होगा फ्रॉम पेरेंट्स टू जो बड है उस पर, एंड देन द न्यूक्लियस इज डिवाइडेड एंड देन ट्रांसफर. न्यूक्लियस डिवाइडेड पास इनटू द बड. उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइडेड होगा एंड बड में वो ट्रांसफ़र करेगा. बड इनलार्ज एंड सेपरेट थ्रू द सेप्टम. जो ये बड है फॉर्म हो रही है वो क्या हो रही है, वो इनलार्ज होगी और थ्रू सेप्टम के ये मतलब अलग हो जाएगी. बड इज सेपरेट फ्रॉम पेरेंट्स लिविंग अ बड स्केयर समटाइम. दिस इज़ अ फिगर ऑफ द बडिंग. पेरेंट सेल उसमें क्या है, मदर सेल है, उसमें क्या है, वैक्यूल है प्रेजेंट है और बड फॉर्म हो रही है, आउट ग्रोथ हो रही है, जिसमें पहले माइट्रोकॉन्ड्रिया ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस मतलब वो ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद सेप्टा फॉर्म होंगे तो डॉटर बर्ड्स बनेंगे, मतलब आउट ग्रोथ बनेंगे. सेकेंड फिशन इज सेकेंड प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ फिशन. द हीज आर आल्सो कॉल्ड फिशन हीज. हीज को हम लोग जनरली फिशन हीज भी कहते हैं बिकॉज दे आर रिप्रोड्यूस बाय द फिशन. जो फिशन प्रोसेस में जो हीज बन रही हम लोग उसको क्या कहेंगे, फिशन हीज कहेंगे. हीज सेल अंडरगो फिशन बाय ट्रांसफ़र डिवीजन. इसमें क्या होती है, फिशन में क्या होती है, ट्रांसफ़र डिवीजन होती है. इसमें क्या होता है, पेरेंट सेल इनलार्ज होता है, पेरेंट सेल इज इलोंगेटेड, पेरेंट सेल इलोंगेटेड होगा, देन द न्यूक्लियस इज डिवाइडेड एंड ट्रांसफ़र वॉल सेप्टम डेवलप सेंट्रीपिटल. इट मीन्स द जो ट्रांसफ़र वाल है जिसको हम लोग सेप्टम भी कहते हैं वो क्या होगी, डेवलप होगी सेंट्रीपिटली, मीन्स टुवर्ड द सेंटर, आउटसाइड नहीं. दस सेपरेटिंग द डॉटर यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स. इसमें क्या होगा कि सेपरेट होंगे टू डॉटर यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स एंड उसके बाद क्या होगी, द ट्रांसफ़र वॉल बिकम थिक एंड देन स्प्लिट इनटू टू लेयर फॉर्म ईच डॉटर सेल बिफोर दे सेपरेट. उसके बाद जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा और दो सेपरेट हो जाएंगे सेल्स, उसके बाद ये ट्रांसफ़र वॉल दोबारा थिक होगी एंड स्प्लिट होगी, टू डॉटर सेल्स बनेंगे. दिस इज़ अ फिगर ऑफ द फिशन इज. दिस इज़ अ पेरेंट सेल एंड दिस द न्यूक्लियस इज डिवाइडेड, द सेल मेम्ब्रेन और सेप्टम और फॉर्म inward pinch toward the central and two daughter cells are developed. And then the asexual reproduction. Under starved condition, the nucleus of the yeast cell divided mitotically into the four nuclei cytoplasm gather around the nucleus. इसमें अंडर स्टर्व कंडीशन मीन्स द अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइडेड होता है माइटोटिकली और फोर न्यूक्लियस बनते हैं. उसके बाद उसके अराउंड क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट हो जाए. उसके बाद वो न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा तो डेवलप करेगा थिक वॉल, जिसको हम लोग दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोस्पोर. जो थिक वॉल बनेगी अराउंड न्यूक्लियस इसके फोर न्यूक्लियस इसके, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग एंडोस्पोर कहते हैं. एंडोस्पोर में क्या होती है, द एंडोस्पोर आर कैपेबिलिटी ऑफ टाइडिंग ओवर अनफेवरेबल बिल्डर अंडर फेवरेबल कंडीशन दे गेन राइज टू द हीस्ट. इस एंडोस्पोर में एबिलिटी होती है जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती हैं तो ये डेवलप करता है न्यू हीस्ट सेल को. एंड देन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द हीस्ट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस वेरी रियरली इन सम ऑफ स्पीशी ऑफ द हीस्ट. सम ऑफ स्पीशी में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कॉन्जुगेशन प्रोसेस होता है. कॉन्जुगेशन मीन्स द जॉइनिंग ऑफ द टू इंडिविजुअल्स. Two individuals come close together and beak-like outgrowth are formed out of them. These outgrowth fuse with each other. ये क्या है कि टू इंडिविजुअल जब क्लोज हो जाएंगे तो आउटग्रोथ बीक-लाइक आउटग्रोथ बनेगी और दीज जो आउटग्रोथ हैं वो क्या करेंगी, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगी
एंड और देन द न्यूक्लियर ऑफ बोथ इंडिविजुअल कम इन दिस पीक एंड उसके बाद क्या होगा कि न्यूक्लियस होंगे वो दोनों के वो फ्यूज़ करेंगे एंड डिज़ोल्व द वॉल ऑफ कॉन्टैक्ट डिज़ोल्व। उसके बाद जो बीच में जो वॉल होगी वो क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी एंड न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाएंगे। न्यूक्लियस फ्यूज़ विथ ईच अदर गिव राइज टू द। उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज़ होंगे तो जाइगोट बनेगा। द जाइगोट एंड देन द जाइगोट विल सून कन्वर्टेड इनटू। उसके बाद जाइगोट है वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा एस्कस में। डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ एस्कस डिवाइडेड थ्रसली प्रोड्यूसिंग 8 न्यूक्लियर। उसके बाद जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा, बनेंगे 8 न्यूक्लियस। 8 न्यूक्लियस बने। फर्स्ट डिवीजन इज अ रिडक्शन टू बिगिन हैप्लॉइड कंडीशन अगेन। उसके बाद 8 बने, 8 न्यूक्लियस होंगे ना वो हैप्लॉइड होंगे। मीन्स इसमें क्या हुई है, रिडक्शनल हुई है। पहले डिप्लॉयड थे अब हैप्लॉइड बन गए। अराउंड ईच न्यूक्लियस द साइटोप्लाज्म इज डिपॉजिट, दे बिकम वॉल्ड एंड कॉल्ड एस्कोस्पोर। उसके बाद इन न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा और वो वॉल बनेगी और वो एस्कोस्पोर हम लोग उसको कहेंगे। एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होंगे ऑन बस्टिंग द वॉल ऑफ एस्कस, द एस्कोस्पोर्स आर। उसके बाद क्या होगी, एस्कस की जो वॉल होगी वो क्या होगी, बस्ट होगी और एस्कोस्पोर्स लिबरेट करेंगे। ऑन गेटिंग सूटेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड 2 इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस बाय बडिंग। सही। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी या सूटेबल कंडीशन आ जाएंगी वो एस्कोस्पोर्स क्या होंगे, जर्मिनेट करेंगे एंड प्रोड्यूस करेंगे न्यू इंडिविजुअल्स। दिस इज़ अ फिगर ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज़ अ फिगर ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या हो रहा है, कप्लेशन प्रोसेस हो रहा है, प्लाज्मोगेमी हो रही है, कैरियोगेमी हो रही है। सही है। 2 सोमेटिक सेल्स हैं। सोमेटिक सेल्स में क्या हो रही है, मियोसिस हो रही है, मियोसिस हो रही है और एस्कस है। एस्कस से क्या हो रहे हैं, ये वॉल मतलब रप्चर होगी और एस्कोस्पोर्स क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे। एस्कोस्पोर्स क्या करेंगे, कप्लेशन प्रोसेस होगा। उसके बाद उसमें क्या होगी, प्लाज्मोगेमी होगी, देन कैरियोगेमी बनेगी। ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है। पहले डिप्लॉयड थे, अब उसके बाद क्या बनेंगे, हैप्लॉयड बनेंगे। हैप्लॉयड मिल के एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएंगे दोबारा। And last one, I define the economic importance of the yeast. Yeast have a lot of economic importance, value. They have a beneficial as well as a harmful. Beneficial uses में आ जाते हैं, ब्रेड मेकिंग आ जाती है। ब्रेड मेकिंग में क्या होता है, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ yeast ब्रेड, yeast इज मिक्स विथ वाइट फ्लोर। जो ब्रेड हम लोग बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, yeast को मिक्स करते हैं वाइट फ्लोर के साथ। The bread swell up and become spongy हो जाएगी and become spongy due to pressure extended by accumulated carbon dioxide। जब हम लोग yeast को मिक्स करेंगे वाइट फ्लोर के साथ तो ब्रेड क्या होगी, swell up होगी एंड स्पंजी होगी एंड प्रेशर क्रिएट करेगी। फ्लेवर क्वालिटी ऑफ ब्रेड इज अटेन्ड बाय सेलेक्ट टू डिफरेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ। जो फ्लेवर होता है ब्रेड का वो डिपेंड करता है हीस्ट के स्पीशी पे और डिफरेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ हीस्ट हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट फ्लेवर ऑफ द ब्रेड के लिए। फर्मेंटेशन होती है प्रोसेस में। बेनिफिशियल में फर्मेंटेशन क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रेक डाउन इनटू द अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च शुगर बाय हीट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन इसका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये इसमें अल्कोहल बन रहा है इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया। अल्कोहल इज़ अ मेजर इंटीग्रेंट इन बेवरिंग इंडस्ट्री, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है फॉर बेवरिंग इंडस्ट्री के लिए। हीज एज अ सोर्स ऑफ फूड, हीज को हम एज अ सोर्स ऑफ फूड भी यूज़ करते हैं। हीज कंटेन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस प्रोटीन इन डिफरेंट क्वान्टिटीज़। ड्राई हीज कंटेन, हीस्ट में क्या होता है, डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली जो ड्राई हीस्ट है उसमें क्या होता है 40 to 50% प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। सम स्ट्रेन ऑफ हीस्ट हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द फैट, जो हीस्ट है उसमें कुछ अमाउंट फैट का भी प्रेजेंट होता है। हीस्ट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स व्हेन हीस्ट आर इरेटेड। व्हेन हीस्ट आर इरेटेड मतलब इसमें क्या होता है, हीस्ट से हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स भी बनाते हैं।
यूज इन बेवरिंग इंडस्ट्रीज और वाइन। हीस इज़ नेचुरली प्रेजेंट ऑन दी स्किन ऑफ ग्रेप्स। हीस जो होती है वो जनरली प्रेजेंट किस पे होती है, ग्रेप्स की जो स्किन होती है उस पर प्रेजेंट होती है। एंड कैन बी यूज टू नेचुरली फ्रेगमेंट ग्रेप जूस इनटू द वाइन्स। वो जनरली हम लोग उसमें ग्रेप्स के जूस इनटू द वाइन्स को यूज़ करते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ सर्विसाई एंड ईच विल प्रोड्यूस यूनिक फ्लेवर करेक्टर ऑफ। ये क्या है इसका, ईच मतलब यूनिक एक करेक्टर और फ्लेवर देती है वाइन्स में। न्यूट्रिशन, हीस इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। हीस जो है वो क्या है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। बी विटामिन बी सोर्स है, मिनरल्स हैं। हीस इंडियन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इज़ ऑफन सोल्ड इन न्यूट्रिशनल हीस आर हीस एक्सट्रैक्ट। मतलब ये क्या है, हीस से हम लोग प्रोटीन भी ले सकते हैं, उसमें प्रेजेंट होती है, विटामिन प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। यूज़ इन मेडिसिन, lowering high cholesterol. Research show that taking a specific red yeast product of 2 or 3 months could seemingly lower total bad cholesterol, low density lipoprotein. They are also utilized in medicine as a source of enzyme. मीन्स लोग इसमें क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल होती है वो कम होती है, मीन्स फैट्स इसमें कम होती है। रिसर्च क्या कर रही है, शो स्पेसिफिक जो हीस्ट है वो रेड हीस्ट, उसमें क्या होता है 2 to 3 months could significantly lower total, मतलब एज अ सोर्स ऑफ एंजाइम्स और करते हैं मेडिसिन्स में, एज अ सोर्स ऑफ एंजाइम करते हैं बनाने में। हीस एंड बायोटेक्नोलॉजी, हीस बिलोंग टू दी traditional biotechnology in industry of fermentation. Yeast is used in not only food industry to making bread, wine or beer but also in non-food. It means मतलब हम लोग जस्ट हीस को फूड इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते हैं या ब्रेड वाइन्स और बियर बनाने के लिए यूज़ नहीं, बल्कि नॉन फूड इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, सच एज बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज़ टू प्रोड्यूस इथेनॉल। जैसे बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही है इथेनॉल बनाने में या इलेक्ट्रिसिटी बनाने में प्रोड्यूस हो रही है, यूज़ हो रही है। हार्मफुल इफ़ेक्ट में आ जाते हैं हीस इन्फेक्शन। हीस जो है ना पैथोजन है, हीस पैथोजन है, वो क्या करती है, डिजीज़ काज करती है। इट कैन रेंज इन सेवरी फ्राम माइनर डिस्कम्फर्ट टू लाइफ थ्रेट एंड अल्टीमेट डिपेंड ऑन योर इम्यून सिस्टम। वो क्या करती है, हीस की जो है ना मतलब वो इन्फेक्शन काज करती है, वो क्या डिपेंड करती है आपके इम्यून सिस्टम में। द टाइप ऑफ हीस, लोकेशन ऑफ हीस एंड वे यू कम्फर्ट, उसकी क्या करती है, टाइप ऑफ हीस कौन सा इफेक्ट कर रहा है और उसकी लोकेशन क्या है वो उस पर। फूड स्पॉयलेज, ड्यूरिंग देयर ग्रोथ हीस मेटाबोलाइज सम फूड कंपोनेंट्स सक्रोज, इथेनॉल, एसिटिक एसिड एंड प्रोड्यूस मेटाबॉलिक इन प्रोडक्ट। जब उसकी ग्रोथ हो रही होती है तो क्या करती है वो सम फूड जो कंपोनेंट्स है वो यूटिलाइज करती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सक्रोज, इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड, और इन प्रोडक्ट मेटाबोलाइज करती है। दिस काज फिजिकल केमिकल सेंसर फूड ऑफ चेन एंड फूड इज, वो क्या करती है, यूटिलाइज करती है, उसके बाद मेटाबोलाइज करती है इन प्रोडक्ट्स, एंड वो क्या करते हैं, वो इन प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, हमारे फूड को क्या करते हैं, स्पॉइल करते हैं और चेंज करते हैं। इंटॉक्सिकेशन, इसका इंटॉक्सिकेशन ऑफ फूड एंड बैड ड्रिंक्स, इंटॉक्सिफिकेशन भी करती है फूड्स में वगैरह में। प्लांट पैथोजन, हीस क्या है, प्लांट पैथोजन, मतलब ये डिजीज़ काज करेगी प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। सर्टेन स्पीशी ऑफ हीस आर प्लांट पैथोजन एंड डिक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, ये क्या करेगी, डिजीज़ काज करेगी और जो क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसको क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी डिजीज़ काज करके। एनिमल डिजीज़ होती हैं, सम स्पीशीज़ कैन स्किन हेयर नेल इन्फेक्शन इन ह्यूमन लाइक कैनिडिया अल्बियन, जैसे ये एक स्पीशी है कैनिडिया अल्बियन, ये एक स्पीशी है इसकी, वो क्या करती है, डिजीज़ इन ह्यूमन करती है इन स्किन हेयर एंड नेल पे। एंड ही कैन रेस्पिरेटरी डिजीज़ इन ह्यूमन एस्परजिलस, जैसे एस्परजिलसिस स्पीशी है वो क्या करती है, डिजीज़ करती है ह्यूमन में इन रेस्पिरेटरी। थैंक्स।